Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to my YouTube channel, Exploring the Concepts. So, once again, I am at chapter number 5, Acellular Life, and it's my seventh lecture, and it's about human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus, HIV virus. So, starting from the topic, the very first core topic about the microorganism is its a structure, mean the structure of human immunodeficiency virus. Most of the students have numerous questions about it, and most of the students have so many questions about the topic, but they are unable to ask. They feel they have some weird feeling about the questions. But inshallah, I'm hoping that after listening to this lecture, your most of the questions has been resolved. And this in this lecture, I'm covering the structure and the life cycle of the human immunodeficiency virus. And in the next lecture, I will discuss the symptoms and treatment for the disease. Okay. Okay, so the structure of HIV virus is it is a retrovirus, means it's an RNA virus and it has a reverse transcriptase as well. Okay, so such a virus is called as retrovirus, and spherical in shape. It means it is circular, it is spherical, ये गोल होता है, and its outermost covering is made up of a lipoprotein. एक glycoprotein की बनी हुई होती है, lipoprotein envelop होता है वो, और उसकी lipid bilayer होता है वो. ठीक है, so different proteins are embedded. और जो इसका outermost spherical structure है, it has some viral proteins as well, and these proteins are called as uh, these proteins are basically the viral proteins and are called as spikes. ठीक है, ये spikes बनाते हैं उसके. And the spikes has two parts. First part is glycoprotein 120, outer part is glycoprotein 120, and transmembrane part is glycoprotein 41. ठीक है, then lipid membrane is borrowed. जो lipid membrane है वो borrow करते हैं from the host cell. ठीक है, तो जो इसकी glycoprotein है, which is actually the envelope of the virus, these viruses have borrowed it from the host cell membrane, means the chemical composition of the cell membrane and the HIV viral envelope is same. ठीक है, so GP120 is needed to attach the host cell. अब host cell के साथ attachment के लिए 120 and GP41 are critically needed. ठीक है, okay. Now let's see the diagrams of HIV virus structure. Look at this. This is the blue structure is HIV virus, and you can see it is spherical, means a goal bhi hai, and it has some erupted structure around its structure. So these structures are basically the spikes. ठीक हो गया. अब जनाब, what else is? Else is this is that green structure is once again HIV virus, and that blue structure is a type of bodily cells, human being का जो cell है, which is T lymphocyte. ठीक है, T lymphocyte, and its name is helper T cells. This is the site of infection in human body. For HIV, HIV is not going to infect any other type of cell else. A helper T cells, ये सिर्फ और सिर्फ helper T cells को ही infect करता है. ठीक हो गया. So this is the site of infection in our body. So this is the simplest of all structure, showing everything, but in a simple way. Okay, so that yellow structure is its envelope. That yellow structure is its envelope. Okay, which is a host in a region, and then this is the viral protein, it's viral spike. It has two proteins. That knob-like structure is the GP120, and that transmembrane which is embedded inside the envelope, it is called as GP140. Let's get entered into the HIV. Here we have the capsid. ठीक है, capsid आ गया. Capsid is conical in shape. The shape of the capsid is conical. Then the red structure, thread-like red structure, is its RNA, its genome, which is single stranded, and there are two copies of RNA and two copies of reverse transcriptase as well. Okay, so this is the HIV virus, the simple structure of HIV virus. Now look at this figure. It's a electron micrograph from the for the, they have grown the T helper cell in the lab, and infecting it with the HIV cell, HIV virus. ठीक हो गया.
तो फिर देखा आपने कि जो ग्रीन कलर के है ना, दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज एक्चुअली HIV एंड दैट पिंक स्ट्रक्चर इज हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स जो ये हो गया। इसके बाद जनाब जो आपको आप ये देख रहे हो यहाँ से बडेड ऑफ हो रहा है, ठीक है, इसमें से निकलते जा रहे हैं और आप एक साथ एक वक्त में देख रहे हो किस कदर बन बन के इसमें से निकल रहे हैं। एंड आफ्टर वेन एवर दीज HIV cells get out of moving out of the हेल्पर टी सेल्स, या इसमें से जब भी बडेड ऑफ हो जाते हैं तो the cell membrane, the size of the cell membrane of a helper T cells will reduce, ठीक है, so that is why it will become non-functional. So ये एक बहुत बड़ी रीजन होती है। ओके इसलिए आपका इम्यून सिस्टम आस्ता 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 वीक होना शुरू हो जाता है। नाउ लुक एट द HIV वायरस वंस अगेन। ये बार बार देखोगे ना तो खुद ही ऐसे ही देखते देखते तुम्हें इसकी लेबलिंग भी आ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट as well. Okay, so that purple structure is the outermost envelope, which is host in a region. Then this is MHC protein, we will discuss in later. These are the glycoproteins. Outer portion is 120 and base is 41. Then this is, you know, the capsid, which is conical in shape, two copies of RNA and two copies of reverse transcriptase. And here we have another enzyme. This is integrase. I'm going to discuss it later. And this is the protein which is present around the conical capsid. Once again, this is called as matrix protein. Last figure for the structure of virus. Last figure for the structure of HIV virus is purple. Once again, starting from the purple, which is the envelope, then GP120, then GP41, okay, spikes. After that, we can see a green colored ring around the capsid, and that is basically the matrix protein, which is missing in all of the diagrams I have shown you earlier. ठीक है, इसलिए कि मैंने सबसे लास्ट में रखी और लास्ट में दिखाई, because this figure has all of the parts shown in this, which are present in the HIV virus, right? So these are the spikes, these are the envelope, this is matrix, then this conical structure is of capsid, two copies blue threads of RNA, and this is the pink is reverse transcriptase. Pink circles, small circles indicating you the reverse transcriptase. Red circles is indicating you another enzyme which is present in the core of the HIV virus is protease. Still after that is integrase. ठीक हो गया। So इसके core में we have seen three different enzymes: protease, integrase and reverse transcriptase, along with the two copies of RNA. I hope कि आपको structures of समझ में आ गया और याद भी हो गया होगा। Okay, let's move on. अब ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। Beneath envelope another protein shell is present made up of matrix. HIV capsid is conical. Core contains two single stranded RNA. ठीक हो गया, मीन्स के वो सब बातें इन स्लाइड्स में लिखी हुई हैं, जो भी मैं बताऊंगी, जो मैं डिस्कस करूंगी. Enzymes needed for application: reverse transcriptase, integrase and protease. I have shown you all. Function of reverse transcriptase, integrase, protease will be discussed later in the lecture along with the mode of action of virus. Okay, now look at this slide. HIV virus is the causative agent of acquired immune deficiency syndrome, AIDS. Basically, HIV is responsible for the disease called AIDS. यानी कि ये एक लाइसोजेनिक बैक्टीरिया है। पहली बात तो ये कि ये एक लाइसोजेनिक बैक्टीरिया है और 10 से 12 साल तो लग जाते हैं एड्स होने में, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। पर्सन टू पर्सन दिस डिजीज इज बेसिकली एड्स। एड्स का क्या लिखी हुई है उन्होंने, एब्रीविएशन होती है ना, ये एड्स एब्रीविएशन है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? इट मीन्स के अ वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अ वीक immune system, okay, a weak immune system. And what is the meaning of the word syndrome? The word syndrome means variable symptoms, means person to person symptoms vary करते हैं। हाँ, कुछ symptoms ऐसे होंगे which are common in all of the HIV patients, but there are numerous symptoms which are present in one, and certain other symptoms are present in the second patient, and certain other are present in the next. ठीक है, जिसकी वजह से we called it as a syndrome as it has shown variety of symptoms.
ठीक हो गया. So first it was identified in 1984 by a research team, Pasteur Institute in France and National Institute of Health in USA. फिर 86 में इसको नाम दिया गया HIV का. So that was a little bit history about it. Okay जी. अब हमने देखना है कि ये इन्फेक्ट असल में किस सेल को करता है. थोड़ा सा मैं पहले ही बता चुकी हूँ. आपका जो इम्यून सिस्टम है उसमें आपके पास 4 किस्म के टी सेल्स हैं. ठीक है. टी लिम्फोसाइट्स, ये तो कुछ याद है 9th 10th में, कहीं 9th में शायद आपने पढ़ा था कि 2 तरह के लिम्फोसाइट्स थे, T lymphocytes and B lymphocytes. So now I am talking about T lymphocytes. T lymphocytes have 4 different types, but this time I am concerned with the T helper cell. ठीक है, या helper T lymphocytes भी कहते हैं इसको. कैपिटल T के बेस पे H लिखते हैं, T helper lymphocytes. अब जो हेल्पर सेल्स है ना, ये टी हेल्पर सेल्स, ये इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन है. ये आपकी बॉडी के किसी और सेल को इन्फेक्ट नहीं करेगा, जस्ट टू एक्ट ऑन हेल्पर टी सेल्स, बिकॉज इट ऑब्वियसली लाइक ऑल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट हैज टू एंटर इनटू अ स्पेसिफिक सेल बाय अटैचिंग विद सम रिसेप्टर मॉलिक्यूल. तो इसका रिसेप्टर ही T4 लिम्फोसाइट पर है, तो TH लिम्फोसाइट पर है, तो ये किसी और पे क्यों अटैक करेगा. ठीक है ना. CD4 receptors are found present on T helper cells. ठीक हो गया. तो ये वहीं पर ही अटैक करेगा. अब इसके अलावा वो कुछ ब्रेन सेल्स में भी को भी अफेक्ट कर पाता है, जहाँ पर भी उसको रिलेटेड से मिले ना. और ये आपको पता है कि ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स एंड ऑल पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक. तो अपने स्पेसिफिक सेल में ही एंटर होकर रेप्लिकेट कर पाता है. मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे हेल्पर टी सेल्स का देना चाहती हूँ कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ हेल्पर टी सेल्स. हेल्पर टी सेल्स ना असल में पेट्रोलिंग करते हैं, आपकी सारी बॉडी में घूमते रहते हैं, कहीं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है. तो जैसे ही आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो सबसे पहले उसकी इंट्रैक्शन मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल से ही होती है. तो अगर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्पर टी सेल से मुलाकात हुई ना, तो वो क्या करता है, उसको एंगल्फ कर लेता है, राइट. एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस कहते हैं जिसको, वो करके उसको अंदर ले जाता है. एंड देन विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन लाइसोसोम्स इट विल डाइजेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पीसेस. उसके जो बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं ना, वो उसको अपने सराउंडिंग्स पे लगा देता है. हेल्पर टी सेल्स अपनी सराउंडिंग पे लगा देता है. मतलब क्या बन जाता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. बॉडी को के बाकी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करता है. ठीक है. और फिर बाकी बॉडी को बताता है कि भाई ये देख लो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, जो करना है कर लो. अब जो इसके अगेंस्ट जो भी एक्टिविटी करना है वो जल्दी स्टार्ट कर दो, ताकि हम इस डिजीज़ पे काबू पा सकें. लेकिन अब क्या होता है कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन HIV पॉजिटिव पेशेंट, अब वो हेल्पर टी सेल तो बीमार है, वो उसका नंबर आहिस्ता 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 आपकी बॉडी में कम हो रहा है, मर रहे हैं, वो डैमेज हो रहे हैं और नॉन फंक्शनल हो रहे हैं, रेप्लिकेट नहीं कर रहे, या जो भी मसाइल आ रहे हैं उसके. तो अब आपकी बॉडी को इन्फॉर्म कौन करे अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So no other method is there to inform the rest of the body about any incoming foreign particle. So that is why हमारा immune system आहिस्ता 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 वीक हो जाता है. और ये HIV जो एड्स के जो पेशेंट होते हैं, HIV पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते हैं, अब मैं आगे बताऊंगी कि ट्रीटमेंट थोड़ी सी आ गई है तो कुछ हालात बेहतर हो गए हैं. तो ये क्या होता था कि इन्होंने ये क्या करते थे कि जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो नहीं बता पा रहे, तो उनका नंबर कम हो रहा है. तो जो आम नमूनिया, जिससे एक छोटे से बच्चे की भी डेथ नहीं होती ना, वो भी इनको बीमारी इनको लग जाती है. आम डायरिया इनको लगा रहता है, क्योंकि बॉडी में कोई इम्यून सिस्टम रिएक्ट ही नहीं कर रहा आपका. तो सो बेसिकली ये इसका डिजीज का क्रक्स है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, नाउ अटैचमेंट. ठीक है, अब ध्यान से ये पॉइंट देखिएगा. लुक एट दिस डायग्राम फॉर द फर्स्ट. So this is actually the fusion domain. The whole of the fusion domain is needed for the attachment of HIV virus to the helper T cell. ठीक है. So this is CD4 receptor, that yellow colored forked structure is CD4 receptor. On its one side is CXCR4 and on its other side CCR5, right? These, and then is fusion domain. All these proteins are needed for the attachment of or for the entry of the HIV virus into the white blood cell. ठीक है. अब ये तो हमें लेबलिंग हमने देख ली.
अब हम देखते हैं आगे इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, अब एक एक फिगर पे रहिएगा, बाकी फिगर्स को एक साथ ना देखें, ठीक है। ये वंस अगेन वही वाली फिगर है, आपको सारी डोमेन नजर आ रही है, आपको GP120 नजर आ रहा है, आपको GP41 नजर आ रहा है। GP41 वॉज ट्रांसमेम्ब्रेन एंड GP120 द हेड ऑफ दैट स्पाइक। ठीक हो गया। अब ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट में आप देखो कि ये जो GP120 है, GP120 CD4 में एंटर हो गया, ठीक है। उसका नेक्स्ट पार्ट GP120 का दूसरा पार्ट है, वो साथ CCR5 में एंटर होगा, ठीक है। एंटर हो गए, ये दोनों एंटर हो गए। अब क्या होगा? इसके बाद जो GP41 है वो इस ब्लू वाले फ्यूजन डोमेन में एंटर होगा। मीन्स ये तीनों एंटर हो गए, लेटर ये भी एंटर हो जाना चाहिए। लेकिन इसके एंटर होते ही ना, आप फिगर में देखो, ओहो सॉरी, देखो ये इसमें एंटर हो गया, ये सारे इस तरह बन गए। ओके, अब इसके एंटर होते ही आप इस वाली फिगर में चेक करें तो क्या हो रहा है? जैसे ही ये सारे लगे तो GP41 के अटैचमेंट होते ही वायरस जो था वो क्लोज कांटेक्ट में आ गया विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द हेल्पर टी सेल। अब आपको मालूम है दोनों की केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम है, दोनों ही लिपिड बाइलेयर के बने हुए हैं। तो वो जैसे ही इसके साथ आके अटैच होता है, साथ ही क्या होता है? एंडोसाइटोसिस शुरू हो जाती है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? देखो आप क्या होता है एंडोसाइटोसिस में, वो उसके साथ अटैच हुआ, उनकी एक ओपनिंग बन गई, ओपनिंग के बनते ही इसकी HIV की जो मेम्ब्रेन है वो आपकी मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। आपकी मेम्ब्रेन का पार्ट बनेगी और यहाँ से ये एंडोसाइटोसिस ये टूटेगा और ये सारे जो CD4 सेप्टर्स हैं वो उसकी एंट्री और उसके अटैचमेंट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएंगे और फिर ये कैप्सिड अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कि इन सारे रिसेप्टर्स ने क्या हेल्प किया? उसको क्लोज किया टू द फ्यूजन करवाने में, ठीक है, फ्यूजन प्रोसेस करवाने में हेल्प किया। नाउ दिस इज व्हाट इज हमने जो बैक्टीरिया फेज में पढ़ा था, एड्सॉर्प्शन, पेनिट्रेशन एंड इंजर्शन। तो ये वो तीन स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए विद द हेल्प ऑफ CD4 रिसेप्टर एंड कंप्लीट फ्यूजन डोमेन। ओके, what else is, now look at the simple figure of HIV cycle. अच्छा, अब मैंने पीछे आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वगैरह के बारे में इतना नहीं बताया, अब बताऊंगी। ओके, स्पेसिफिक रिसेप्टर मीडिएटेड HIV बाइंडिंग विद होस्ट सेल, ठीक है। ये यहाँ पे आया, CD4 से काउंट से बॉन्डिंग हुई, फ्यूजन अंदर आ गया, फ्यूजन हुई, फ्यूजन के बाद एंडोसाइटोसिस हुई और क्या ये सारी वायरल प्रोटीन वगैरह बाहर रह गई और जनाब कैप्सिड अंदर आ गया। कैप्सिड अंदर आके उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने पे उसकी तमाम तर प्रोटीन्स यानी कि इंटेग्रेस, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड 2 कॉपीज ऑफ RNA वो दोनों अंदर हो गई, ठीक है, सेल के अंदर आ गई। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ये वायरल जीनोम आ गया और ये इसके साथ अटैच्ड है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों को शायद याद हो। सो ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? कॉपिंग ऑफ DNA इनटू RNA, कॉपिंग ऑफ DNA इनटू RNA मींस के DNA की कॉपी बनती है और वो RNA बना देता है, ठीक है। RNA बन गया, जैसे ही RNA बनता है ना, तो सॉरी ये तो ट्रांसक्रिप्शन होती है। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से मुराद है कि कॉपिंग ऑफ RNA इनटू DNA, रिवर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ ये कैसे एक्ट करता है? यहाँ ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ऐसे एक्ट करता है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। और इसने क्या बनाया? RNA DNA हाइब्रिड बना दिया। हाइब्रिड क्या होता है? और कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट जीनोम्स, ठीक है, दो डिफरेंट तरह के जीनोम्स जब भी कंबाइन करेंगे तो हम उसे कहेंगे हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड बन गया, ये RNA DNA का हाइब्रिड बन गया। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही किस तरह एक्ट करेगा? एज RNA's एंजाइम, ठीक है। अब वो क्या करेगा? इस वायरल RNA को डाइजेस्ट कर देगा, इसे यहाँ से गायब कर देगा। मीन्स को RNAs के तौर पे एक्ट करेगा, वायरल जीनोम के टुकड़े टुकड़े कर देगा और वो आहिस्ता आहिस्ता फैगोसाइटोसिस के थ्रू, आई मीन लाइजोसोम्स, उन्हें खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एवरीथिंग टू वायरस, ठीक है। सो नाउ इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड बना ना, हाइब्रिड में से RNA से DNA बना था,
आरएनए तो उसने डाइजेस्ट कर दिया, खाली डीएनए की एक कॉपी रह गई। अब डीएनए को डबल स्टैंडर्ड बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो वायरल डीएनए तो उसमें आके अटैच होना है। अच्छा, अब अच्छा जी, ये वायरल डीएनए उसने क्या किया, डबल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, सी डीएनए बना दिया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की एक कॉपी निकाल ली। किसने? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने, यानी कि उसने थर्ड टाइम क्या एक्टिविटी शो की है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो तीन एक्टिविटीज आर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने की। पहले आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, फिर आरएनए, फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आया उसकी एंजाइम, उसकी प्रोटीन आई इंटेग्रेज। इंटेग्रेज विल टेक, इंटेग्रेज इसकी दोनों एंड्स पे अटैच हो जाती है एंजाइम जो है। देन इट विल एंटर इनटू द इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में यू नो वी हैव आवर ओन हेयर, वी हैव आवर ओन डीएनए। तो ये जाके वहाँ जाके अटैचमेंट हो जाती है इसकी विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रेज एंजाइम। इंटेग्रेज एंजाइम की ड्यूटी है इज टू मेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ऑन बोथ एंड्स। वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बना देता है, और ये यहाँ पे हमारा पार्टनर बन के चुपचाप आके रह लेगा। ठीक है, चुपचाप रहेगा। इसको हम कहते हैं प्रो वायरस। दिस स्टेज इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रो वायरस। अब ये इसी स्टेज में रह सकता है, और या बहुत स्लो अपनी मल्टीप्लिकेशन कराएगा, या हेल्पर टी सेल की मल्टीप्लाई होने का वेट करेगा। वो मल्टीप्लाई करेगा तो इसकी भी कॉपी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यूँ आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ता जाएगा। और जब वो देखेगा कि आपका सेल खतरे में है, जब वो देखेगा कि यार अब इस HIV, इस हेल्पर सेल की हालत ठीक नहीं है, इसकी डेथ होने वाली है, तो तब वो क्या करेगा? अपनी कॉपीज बनवाना शुरू करेगा। या हो सकता है कि ऐसा ना भी करे, कंडीशन के बगैर भी अटैक कर सकता है। लाइसोजेनिक साइकिल को लिटिक साइकिल में ये कन्वर्ट कर सकता है, और कन्वर्ट करने पे ये अपनी कॉपीज बनवा लेगा। कॉपी बनवा के अब आपको वो सारे स्टेप्स बैक्टीरियोफेज में मैंने डिटेल से करवाए थे। असेंबलेज, पहले कॉपीज बनवानी है, रेप्लिकेशन करवानी है, फिर असेंबलेज करानी है, फिर मेच्योरेशन करानी है, और फाइनली लाइसिस। तो वो सारे स्टेप्स ये भी यहाँ करवाएगा। अपनी कॉपीज बनवाएगा, अपनी कॉपीज बनवाने के बाद असेंबलेज करवाएगा, कैप्सिड के अंदर कैप्सिड बनाएगा। कैप्सिड के अंदर पहले आरएनए की 2 कॉपीज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की 2 कॉपीज, प्रोटीएज, इंटेग्रेज सब डालेगा, और फिर कैप्सिड क्लोज करना है। दैट इज कॉल्ड एज असेंबलेज। असेंबलेज के बाद मेच्योरेशन होगी, कि इसके बाहर इसकी बडिंग होगी, और बडिंग के थ्रू सेल मेम्ब्रेन ऑफ देखो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन ले ली। अब यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होगी, और वायरल प्रोटीन्स भी इसने बनाई हुई हैं। पहले ये देखो वायरल प्रोटीन्स बनाई हुई हैं जो बाहर अटैचमेंट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज मेच्योरेशन एज वेल। और बडिंग होने पे जो बाहर निकलेगा, इसकी आउटर मोस्ट सेल की जो बाउंड्री है वो आपके सेल की, और अब ये नया CD4 रिसेप्टर ढूंढ के उसे अटैक करेगा। ठीक है, सो दैट इज द साइकिल ऑफ HIV। मैं एक और फिगर है जो मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लेबलिंग इसकी हुई हुई है। इसको बहुत ध्यान से डिटेल से एक नज़र देखना आप लोग। मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, 2 दफ़ा एक्सप्लेन करने से मेरा मकसद ये होता है कि वो एक टॉपिक कम्प्लीटली अच्छी तरह समझ आ जाए। अच्छा जी, अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये देखो CD4 रिसेप्टर, उसी तरह ये उसके CD4 रिसेप्टर उसके स्पाइक के साथ एंटर हुए, इसको उसके बाद उसने खींचा है। आप ये देखो वो टर्न होके क्लोज करके इसको क्लोजर लेके आया सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन के क्लोज लाने के बाद ये आप देखो क्लोज होने के बाद एंडोसाइटोसिस हुई है। एंडोसाइटोसिस होने पे कैप्सिड अंदर आ गया, फिर कैप्सिड ब्रेक हुआ प्रोटीज एंजाइम की मदद से, यहाँ लिखा हुआ है सारा कुछ। और कैप्सिड RNA की कॉपीज बाहर आ गई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बाहर आ गया। फिर इसके बाद कॉपी होती है वायरल RNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कॉपी हो गई, और इंटेग्रेज के थ्रू वायरल RNA अब पहुंच गया इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आके ये देख रहे हो आप, बिल्कुल प्रॉपरली इसका पार्ट बन गया। ये आप देख रहे हो इंटेग्रेज वायरल RNA के दोनों साइड पर है। अब यहाँ पे आके उसने अपनी ये स्टेट इस प्रोफेज प्रोवायरस। अब इसके बाद उसने क्या करनी है? अपनी कॉपीज बनानी है, अपनी बार बार अपनी mRNA बनवाएगा, अपनी कॉपीज बनवाएगा, और अपनी कॉपीज बनवा के जो सेल के राइबोसोम्स हैं वो उसको कॉपी करवाएंगे, ट्रांसलेट करवाएंगे, और असेंबलेज पे जाएगा। असेंबलेज के बाद अपनी मेच्योरेशन पे जाएगा, और मेच्योरेशन के बाद सेल से बाहर बर्ड ऑफ हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल से लेबलिंग को देखना, इस फिगर के स्क्रीनशॉट्स ले लेना, आपको फायदा होगा।
और आगे जितनी भी स्लाइड्स हैं उसमें ये सारा प्रोसेस देखो, एड्सॉर्प्शन से शुरू होता है CD4 रिसेप्टर्स, फिर फ्यूजन आ जाती है, फिर ये साइटोप्लाज्म तक आ गया सब सामान अलोंग विद द एंजाइम्स, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसकी एक्टिविटीज़, आरएनएज एक्टिविटीज़, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी, फिर इंटेग्रेज फाइनली आ गया। इंटेग्रेज के बाद ये सब कुछ जो कुछ मैंने बताया है वो यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। और फाइनली इसके असेंबलेज शुरू हुई, असेंबलेज के बाद मेच्योर वायरियन ने सेल को लीव करना है और सेल आस्ता आस्ता नॉन फंक्शनल हो जाएगा क्योंकि उसका साइज छोटा होता जा रहा है बिकॉज ऑफ बडिंग ऑफ द मेच्योर वायरियन। और फिर टी हेल्पर सेल्स रेगुलेट करते थे जो इम्यूनिटी को, वो अब चूंकि बीमार हो गए हैं तो वो आपको हेल्प नहीं कर सकते। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स कॉज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। देयरफॉर लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ, देयरफॉर द वायरस हैज बीन नेम्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो दैट वाज द होल साइकिल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस एंड द लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर समझ में नहीं आया तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं रिपीट कर सकूँ टॉपिक को। और कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, आप कमेंट्स में क्वेश्चंस लिख सकते हैं or you can contact me at any time. I thank you all for patience listening. So don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon as well, so as YouTube can notify you about all my latest uploaded lectures. Thank you so much. Allah Hafiz.